This is a very special occasion for us at HarperCollins. I'm Shantanu Raichaudhuri and I'm an editor at HarperCollins, and we are proud to be associated with the two books that we are releasing today. Both have the common theme of Gulzar Saab. One is, of course, a book by Sabaa Bashir on the poetry of Gulzar, and the other is a book by Gulzar Saab, a book called Hindi for Heart. I'll not take too much time. I'll just introduce the two books, and then I'll call upon Professor Asad to introduce the very distinguished guests. I'd like to thank Gulzar Saab for being with us and honoring us with his presence this afternoon. It's a pleasure. It's always a pleasure to meet him and talk to him, and it's wonderful to be publishing books with him, on him. Thank you so much, Gulzar Saab. Thank you, Pavanji, for doing the foreword to Sabaa's book. We couldn't have asked for a better introduction to the book. Sukrita ji, who has a lot of complaints about me not taking her calls. Thank you so much. I took her calls on this particular event. And Sabaa, of course, how can I thank you for doing the book with us? It has been wonderful. It's been 2 years since we took you on, and it's been worth the wait. And Sabaa's book, of course, addresses the poetry of Gulzar, the various themes that he has worked in his poetry, his film poetry, his non-film poetry, and of course during the proceedings today you'll all get a sampling of the book. And the other book, Hindi for Heart, I'm very sorry to say that Meenakshi, who actually worked on the book, is not with us today because of some personal commitments. It's a book that I was telling Gulzar Saab just before coming here. If that book had come out 25 years ago, I would probably have fallen in love with a Hindi-speaking lady sometime, because it's such a beautiful book on Hindi for Heart. What more can I say about it? Thank you all and have a wonderful time today. I'm sure we'll have Gulzarji reading a few poems for us. And I would now like to call upon Professor Asad to introduce the guests. And thank you, Professor Asad, for hosting us at this event today. A very warm welcome to all of you this cheerful evening, made more glorious by the arrival of Gulzar Saab, Pavan Saab, Sukrita and Sabaa. I have the privilege of introducing the guests, but how can I even begin to introduce Gulzar Saab, because there is so much to say which can't be wrapped up in 1 or 2 minutes. I'll not attempt doing that. It will be evident during the course of the discussion. But what is very evident is that his popularity cuts across all ages, all genders and so on. Just the other day I was teaching my first year BA students Kipling Jungle Book, and then I asked them, have you heard of Gulzar? Not much recognition. They said, don't you remember something starting with Jungle Jungle Baat Chali Hai, Pata Chala Hai? Then immediate recognition was there, and then from that further conversation ensued. He has traveled in so many genres. It is very difficult to decide whether he is a better poet, better short story writer, better songwriter, filmmaker, a screenplay writer, and so on. I won't begin to attempt that. But what is remarkable is that what he says is certainly important, but the way he says it, the beautiful way he says it, is perhaps more important in case of Gulzar. I can mention his Sahitya Akademi Award, National Film Award, 20 plus Filmfare Awards, Academy Awards,
and so on. But all this simply do not add up to the greatness of the poet, the incomparable charm of the man, and the impeccable style of his delivery, which will be evident in a little while. And when on this, perhaps I say without much exaggeration, with apologies to Ghalib, कि है और भी दुनिया में शायर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गुलजार के अंदाज़ बयां कुछ और. शायर का इस्तक़बाल और तारुफ़ शायरी से हो जाए, उससे बेहतर क्या है. सो उनकी इजाज़त से मैं अहमद फराज के दो शेर से उनका इस्तक़बाल करना चाहता हूँ. Heard them long ago, I hope I remember them correctly. सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं. And we know that poetry is both metaphorical and literal. The first misra you can take metaphorically and the second literally. सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं. सुना है वो जब बोले बातों से फूल झड़ते हैं. And this is so appropriate of Gulzar Saab. बहुत खूब. सुना है वो जब बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं. ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. और उनके साथ बात करने के लिए हमारे साथ आज है पवन वर्मा जी, diplomat, writer, political commentator. We have had the privilege of celebrating the publication of his latest book, Chanakya's New Manifesto, earlier this year, right in this conference hall. I introduced him at that time more elaborately. Perhaps this is not the occasion. But his presence here is all the more important because perhaps he knows Gulzar more than anyone else, and his poetry too. Because he has translated so far 2 volumes of his poetry. And I know when you translate a poet, you have to enter the bare bone of the syntax of every line and every word. And his perspective will be very important for us. We have Sukrita Paul Kumar, a poet, a painter, a fellow colleague from Delhi University and a very dear friend, another person who has known Gulzar Saab over the years, and she can give us the poet's perspective on him. And then we have Sabah, to whom we owe this occasion, who has written the book, a published poet in English and an incomparably fine translator. So ladies and gentlemen, let's be prepared for a very cheerful and delightful evening. We'll now have the formal release of the book. Both, in fact, both the books are here. Pavanji, please. Please, microphone by And the second one, the other one, Hindi for Heart, which is Gulzar's own tribute to the language.
गुलजार साहब के मुझसे कह रहे हैं कि ये 2 लाइन जो पीछे हैं उनको जोर से पढ़ दें। इसलिए कि यही थीम है इस किताब का, मुझे जो उससे जल्दी समझ में आता है 2 लाइन अगर उनकी पढ़ दें। ज़बान सीखने की ज़रूरत किसी भी उम्र में पड़ सकती है। ये भी प्रोज नहीं, कविता ही समझो। ज़बान सीखने की ज़रूरत किसी भी उम्र में पड़ सकती है, ऐसे हो जैसे इश्क किसी भी उम्र में हो सकता है। I'll now call upon Sabah to initiate the discussion on Gulzar Sahab and his poetry. थैंक यू प्रोफेसर असद फॉर अ डिलाइटफुल बिगिनिंग टू द। लेकिन अगर गुलजार साहब की पोइट्री का सेशन है, वी हैव टू स्टार्ट विद अ रेसिटेशन ऑफ वन ऑफ हिज पोएम्स प्लीज। सो वील बिगिन विद दैट एंड देन कंटिन्यू विद द डिस्कशन। अच्छा किया ना, अच्छा किया मैं ये रख लिया साथ में, मुझे मालूम था इम्तिहान कहीं भी लिया जा सकता है, कोई पता नहीं। डर ये रहता है कि कहीं टेक्स्ट बुक के बाहर ना मेरा टीचर पूछ ले। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुजा लें आंखें, फिर किसी दर्द को सहला के सुजा लें आंखें, फिर किसी दुखती हुई रग से छुआ दे नश्तर, या किसी भूली हुई राह पे मुड़ के एक बार नाम लेकर किसी हम नाम को आवाज ही दे लें। चलो फिर कोई नज्म कहें, आओ फिर कोई नज्म कहें। सिर्फ ये कि नज्म के बारे में बात करते हुए क्यों लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, किस तरह लिखा, तो ये कहीं जवाब इनके नज्मों ही में मिल सकते हैं। एक नज्म की सुई से सब जख्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूं। एक नज्म की सुई से सब जख्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूँ। चुभती थी तो लगती थी, जब पार निकलती थी तो दर्द को तस्कीन से सीती हुई चलती थी। एक नज्म की सुई से सब जख्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूँ। चुभती थी तो लगती थी, जब पार निकलती थी, टांका लग जाता था जब हयात के साथ, तो दर्द को तस्कीन से सीती हुई चलती थी। एक गलती हुई मुझसे, एक गलती हुई मुझसे, जिस धागे से सीता था उस धागे के आखिर में मैं गिरहा लगाना भूल गया। एक और चलो न दरिया में कांटा डालें, नज़्में पकड़ें। चलो न दरिया में कांटा डालें, नज़्में पकड़ें। चमकती सी एक इमेज फेंकें, गरीब और सुस्त केंचुओं को पकड़ती हैं जल्दी जल्दी मच्छियाँ। चलो किसी मुफलिसी को कांटे पे बांध कर फेंक दें नदी में। चलो न दरिया पे, नज़्में पकड़ें। गरीब और सुस्त केंचुओं को पकड़ती हैं जल्दी जल्दी मच्छियाँ। चलो किसी मुफलिसी को कांटे पे बांध कर फेंक दें नदी में। चलो न दरिया पे, नज़्में पकड़ें। किनारे पर सीपियाँ पड़ी हैं, खुली हुई हैं सदफ न मोती। चलो न मंझधार तक चलेंगे, वहाँ पे गहराई भी ज़्यादा, बहाव भी और तेज़ होगा। अटक गई तो पता चलेगा कि हम उसे खींच कर निकालेंगे या हमें नज़्म खींच लेगी। अमेजिंग, ब्यूटिफुल गुलजार साहब, थैंक यू। 3 में से जो 2 नज़्म सुनाई आपने वो पोइट्री के बारे में है। आओ फिर नज़्म कहें, और फिर ये वाली भी कि किस तरह से आप तालाब में से नज़्म पकड़ रहे हैं। विद दैट नोट आईड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज़ डिफाइन पोइट्री। आप किस तरह से, बिकॉज ये पोइट्री पे बहुत डिस्कशन होता है और यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, they'd like to know your definition of poetry. कुम्हार के लिए चाक घुमाना तो उसे आता है, मट्टी का तोदा सामने रखना आता है, वो अपने अंगूठों से बर्तन बना लेता है, पर कैसे बनाता है अब ये कहाँ से बताया जाए, बताइए, है ना।
और ये सबसे मुश्किल काम है, मैं बताऊं कि साहब शायरी क्या है, शायरी कैसे होती है, उसका जिक्र तो मैंने नज़मों में किया। मैं शामिल हो जाऊंगा। मैं आई रिक्वेस्ट लर्नेड मैन Pawan ji to tell me what is poetry, what is that touches you poetry, how would you define it? असल में गुलजार साहब से सवाल पूछा था तो उसका जवाब वो इस खूबसूरती से देने से इनकार कर दिए कि मुझ पर आ गई बात। पर मैं उनकी पोइट्री पर बोल सकता हूँ। पोइट्री सच पे बोलना इस सब्जेक्ट का सवाब विस्तार बहुत बढ़ जाएगा। सुकृता से पूछ लीजिए। किसी को तो पता है। बट आई थिंक दैट अभी आपने सैंपल देखे जो दो उन्होंने पढ़े, मैंने भी नहीं सुने थे, इन्हें शायद नहीं लिखी हैं आपने। यू सी, because there's shortage of time, let me stress what I feel has been the landmark and overwhelming contribution of Gulzar Sahab. I say this as a writer, as a someone who enjoys poetry. I believe that in many ways he has created a new genre of poetry. एक नए तरह की कविता का आगाज उनसे जुड़ा है जो हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू से को समेट करके एक कन्वेंशनल इमेजरी से बाहर जाकर के इट इज अ न्यू form of expression which shows the evolution of language and thought in modern India. Now, perhaps I am taking an academic view or an objective view of poetry which is exceptionally emotional, and I myself have spent hours reading it and enjoying it. पर अगर आप उसको आज जरा सा हट के उस नजर से देखें, if you see his whole oeuvre, तो सबसे पहली बात तो मैंने लैंग्वेज की बात की कि he has consciously, in my view, and I am subject to correction by him, but not necessarily if he does so in agreement with him. He has evolved language which is modern without losing its traditional लहजा. एक flavor है language, but it's modern. A. B. He has consciously moved away, in my view, from rhymed couplets to blank verse. देखिए, राइम पोइट्री भी बहुत मुश्किल होती है, अच्छा लिखना मुश्किल होता है, बट उसमें एक सेफ्टी नेट होता है कि कहीं जब वो आया तो आपने कहा वाह वाह वाह, वो मिल गए दोनों एंड. बट व्हेन यू राइट ब्लैंक वर्स, you have to hold the reader by the sheer power and emotional content of the imagery. और आप गुलजार साहब को फिल्मों में पढ़ें, सुने या उनकी कविताएं बाहर पढ़ें फिल्मों से, you will see that power of imagery is there in blank verse, which is new, which can be part of erudite, esoteric, academic poetry for a certain number of people, but to acquire this degree of mass appeal कि सड़क पे चलने वाला भी एक दफे उस पोइट्री को पढ़ के उसकी कॉम्प्लेक्स इमेजरी को सुनकर एक बार रुक जाए और कहे कि पसंद आई, ये एक स्ट्रेंथ है. तो पोइट्री क्या होती है इसका तो सब अपनों आप खुद एक जवाब ढूंढ सकते हैं. बट तीसरी चीज गुलजार साहब से कि आप उनकी पोइट्री सुन के आपको कभी कभी लगता है एक लिरिकल फ्लो चल रही है, बट आई हैव ऑलवेज सेड दिस, he is not a casual poet. He has spent a lifetime chiseling the art of putting thoughts and words together. वो जैसे तराशते हैं ना, उस तरह से एक सेंटेंस में कितने मायने, कौन से शब्द का इस्तेमाल, नेक्स्ट लाइन क्या होगा, ये इट्स अ ट्रिमेंडसली डिसिप्लिन्ड
and talented search, which you will see in all his poems. और चौथी बात यह कि मैंने रेयरली पोएट देखा है इस तरह का जो अपनी लिटरेरी चैस्टिटी इन एवरी genre ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ही हैज रिटेन. फिल्म की पोइट्री हो, लिरिक्स जो उन्होंने लिखी हैं, उसके बाहर हो, प्रोज राइटिंग हो, शॉर्ट स्टोरी हो, फिल्म स्क्रिप्ट्स हो, चिल्ड्रंस बुक्स हो. एक्चुअली गुलजार साहब, यू हैव रियली रिटन टू मच. आई थॉट सो, क्योंकि कुछ लोग तो गलतियों से जल्दी सीख जाते हैं, मैं अभी तक सीख नहीं पाया, किए चला जा रहा हूँ. तो एक्चुअली I don't want to say this because he's here or because this occasion. A poet with this, a writer and a poet with this kind of canvas of output and this kind of impact and this kind of innovative skill and this kind of popular appeal would be a candidate for the Nobel Prize in Literature. मैं बिलीव करता हूँ because you see the list of Nobel Prize in Literature. आप लोग अपने आप खुद ही देखिए. There are often people who have written 10, 12 books, of which 3 बड़ी कामयाब हुई, a certain popular base, a certain appeal, कुछ शोहरत हो गई in a certain way. But to sustain it over 50 years and more, 60 years, and to have this kind of canvas. So for all these reasons, I'm very happy for Sabha's book. There should have been many more books by now on Gulzar Saab's poetry, क्योंकि उसके पहलू, उसके aspects, उसके अलग अलग जो उसके मायने हैं, उस पर बहुत सी किताबें लिखी जा सकती हैं. And this book, for which I was privileged to write a foreword, Sabha, I think is a very important contribution to understanding Gulzar Saab beyond merely hearing him recite his poems. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pavan ji. Sukrita ji, would you like to add something? We academics are known for pretensions. Pretensions of what is literature, what is not literature. आदत हो गई है हम लोगों को. और मुझे ये नहीं पता कि क्यों इतने साल गुजर गए, इतना कुछ काम हुआ, काफ़ी कुछ हुआ इन दी ट्रेडिशन. एंड जैसे हम कहते थे ना, कबीर का एक ट्रेडिशन है, उसमें बहुत से लोग फिर कबीर के जैसे लिखने लगे और उन्होंने भी अपना नाम जोड़ दिया कि ये कबीर ने लिखा है. जो भी एक डिस्टिंक्टिव वॉइस बन के आता है पोइट या आती है, जो एक बड़ा डिस्टिंक्टिवली लगता है कि हाँ, दिस वॉइस इज़ डिफरेंट, कुछ हो रहा है यहाँ. इट्स काइंड ऑफ इंटरवेंशनिस्ट. एक जो स्ट्रीम चल रही है उसका थोड़ा सा एक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये दरिया जो है पोइट्री का या क्रिएटिविटी का फ्लो कर रहा है, एक ट्रिब्यूटरी इस तरफ निकल गई, वो शायद वो खुद ही एक रिवर बन जाए. मुझे लगता है उसकी देन हुई है गुलजार साहब. जितने भी आप मॉडेस्ट रहें, ये सही है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एंड थैंक यू सबा, बिकॉज यू हैव गिवन मी एन ओकेजन टू थिंक अबाउट इट. क्योंकि हम लोग जो हैं यूजुअली वो कुलिये के अंदर काफ़ी फंसे रहते हैं, एकेडमिक लोग, और उसको हमारे जो टच स्टोन्स, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था ना, इंग्लिश लिटरेचर के लोग बैठे होंगे यहाँ कि टच स्टोन होने चाहिए और ये और वो. लेकिन हमने थ्योरेटिकली तो ये जान गए, लेकिन वो टच स्टोन क्या है वो कभी उसमें हम जूझे नहीं हैं, उससे अंगेज नहीं किया इतना ज़्यादा. वेस्ट ने जो अभी बहुत देर तक हमें बताते रहे हैं, हम चुपचाप उसको फॉलो करते रहे हैं. लेकिन हमारे यहाँ ये जो ओरेलिटी और रिटन का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, इतना ज़बरदस्त है, टेक्स्ट टू ओरल, ओरल टू द टेक्स्ट. और वो जो स्ट्रीम्स हैं जो मिल रही हैं ये यहाँ पे, आप कहते हैं बहुत, मैं आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ, और आप कई बार कहते हैं गुलजार साहब कि थ्योरेटिकली आप कहते होंगे कि सिनेमा की राइटिंग और है और मेरे लिटरेरी सेल्फ इज़ समथिंग डिफरेंट. मैं ये नहीं मानती, क्योंकि आप जो लिखते हैं उसमें ओरेलिटी का बहुत ज़बरदस्त एक छाप है उसकी. आप आवाज़, शब्दों को सुनते हैं जब लिखते हैं. जैसे आपने कहीं कहा है कि शब्दों की महक भी होती है,
वैसे ही मुझे लगता है जो एक ओरल कंपोनेंट है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग है, वो राइम हो या ना हो इज़ अ सेपरेट थिंग। पोएम बनेगी नहीं जब तक वो इंट्रिंसिकली उसके अंदर कुछ रिदम नहीं आ रहा, वो पोएम ही नहीं बनती, उसकी ऑटोनॉमी नहीं रहती। तो इसमें जो वो दो धारा जो वेस्ट में डाइकोटमाइज कर दिया गया, डिपार्टमेंट्स ऑफ लिटरेचर और ओरल ट्रेडिशंस को फोक कह के एक साइड में कहीं रख दिया गया। हमारे यहाँ वो जो कॉम्बिनेशन था, जो सिंथेसिस था, जिस ट्रेडिशन को मैं, जो कबीर, खुसरो और वो सब वाली बड़े भारी लोग, इवन पीपल लाइक वेरी क्लासिकल राइटर्स, उनमें हमारे यहाँ जो इस सब कॉन्टिनेंट में, और मैं इंडिया नहीं कहूँगी, सब कॉन्टिनेंट कहूँगी, इसमें वो जो इतने स्ट्रॉन्ग दरिया हैं उनको हमने पहचाना नहीं है पूरा। और उसमें आपकी देन है कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत अच्छी देन है, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, उसको डाइकोटमाइज नहीं करना चाहिए। इससे हमारी क्रिटिकल थियरी जिसको हम कहते हैं, मैं इसलिए ये भाषा बोल रही हूँ क्योंकि हमें एकेडमिक लोगों से, आई एम एड्रेसिंग एकेडमिक पीपल वेदर इन उर्दू डिपार्टमेंट और इन हिंदी और इन इंग्लिश, बट आई थिंक वी हैव टू recognize that our poetry has to dictate its own critical tools and touchstones. And why are we not doing it? Let's wake up. Let's wake up and see what are our touchstones and how are they different. And we are different. I'm not trying to perpetuate Edward Said. Please don't misunderstand me. I'm not talking about Orientalism. I'm talking about the essential, absolutely essential, not even the indigenous. I'm not even talking about that. We have to coin a different word for this as to what is our poetry. How do we define it? How should we not dichotomize? तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर हम पोइट्री को हमारे अपने मयार से देखें तो हमें एक डेफिनेशन और ढूंढनी पड़ेगी। और उसमें आई एम ऑल्सो एज मच गिल्टी एज मैनी ऑफ अस सिटिंग हियर are that we haven't engaged in locating a definition which is befitting to our kind of poetry. Thank you, Gulzar Sahab, for being so active and live and vibrant even today in terms of you can shift gears or not shift gears, but ये है कि parameters for writing for cinema must be different. वो धुन दी जाती है, context होता है, उसके अंदर शायद I'm the wrong one to be talking about it, लेकिन मुझे पता है उसके अपने constraint होंगे। लेकिन इसमें भी literary, so called literary writing में भी उसका दखल होता है, पेंटिंग का होगा। पोइट्री इज एज विजुअल एज इट कैन, एज अ पेंटिंग perhaps, and a painting can be very poetic, you see. So उसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि ये जो मेल्टिंग बाउंड्रीज हैं उसको हम कैसे पहचानें। दो सवाल के, एक तो ये कि शायरी क्या है, मैं उससे एस्केप नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू लर्न इट। जब मैंने आपसे सवाल पूछा और या आपसे कहा अच्छा सुप्रीता से पूछिए, शायद वो बताएं कि व्हाट इज़ पोइट्री, वो है क्या शायरी जिसे मैं कहते हैं। ये इट इज़ दैट अननोन फिनोमेना ऑफ मिस्ट्री एंड जो जिसका आकार नहीं है और जिसे ढूंढते रहें, तलाश करते रहते हैं, कभी नज़र आ जाता है, कभी नज़र नहीं आता, फिर गुम हो जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ उसी तरह की है, क्योंकि अगर बिल्कुल वाकई हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये शायरी है, इसके बाहर शायरी नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो हो जाता तो फिर सारे मसले हल हो गए होते। लेकिन जिंदगी जिस तरह से हर लम्हा आपको छू के गुजरती है, कभी छू के गुजरती है, कभी छेद के गुजरती है, कभी जख्म दे के जाती है, कभी सहला के जाती है, कभी छील के भी जाती, तो कुछ तो आप महसूस करते हैं। वो जो आप महसूस करते हैं उसका आपका हर शख्स का अपना मीडियम है। कोई उसे म्यूजिक में, मौसीकी में इजहार कर लेता है, कोई पेंटिंग में इजहार कर लेता है, कोई फिक्शन में भी कर लेते हैं। शायरी एक वो मीडियम है, वो भी एक मीडियम है जिसमें आप उसका इजहार करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि जब ज़िंदगी का कोई लम्हा आपको छू के जाता है तो दो चीज़ें पैदा होती हैं उसमें से। एक तो ये कि कोई ख्याल आता है आपको,
और कई बार ये होता है कि वो ख्याल तो बाद में आता है, एक एहसास होता है, सिर्फ फीलिंग आती है, थॉट नहीं आया, फीलिंग आई, उस फीलिंग से फिर ख्याल पैदा होता है या उसकी इमेज सामने आ जाती है। कुछ इस तरह का एक प्रोसेस ज़िंदगी हर लम्हा आपकी तरफ आपके साथ चलती है। अब वो लम्हों में आप कितने लम्हे हैं जो रजिस्टर कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं या रुक जाते हैं। मुझे उन लम्हों में नज़्में मिलती हैं, गुजर गए तो गुजर भी गए, आप उससे कहानी भी बना लेते हैं, उससे ट्यून भी बन जाती है। क्या व्हाट ए फीलिंग, ये शाम का मंजर उसमें बना लिया। सनसेट आप हर रोज देखते हैं, साहिल किनारे खड़े हो जाइए, 2000 आदमी घूम रहे हैं साहिल पे, हर शख्स का रिएक्शन एक नहीं हो सकता। हर शख्स उस सनसेट को अपनी तरह से देखता है, अपनी तरह से महसूस भी करता है। किसी को महसूस भी नहीं होता तो वो नज्म नहीं लिखेगा। नज्म बहुत लिखेगा जिसने महसूस किया और फिर उसको पकड़ने की कोशिश की। जिस वक्त आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका जितना इल्म आपके पास है, जितनी तालीम आपने पढ़ी हुई है, जितनी शायरी पढ़ी हुई है, वो फौरन इमेजेस के ऊपर थॉट आपको देना शुरू करती है। वो सारी डिक्शनरी माइंड के सामने आ जाती है। आप उसमें से सनसेट देख के कहा कैसे बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगता है ना, और पेंटिंग देखी तो कहा कितना रियल लगता है। कि दीज इमेजेस हैव बीन कमिंग टू यू ओवर एजेस, और आप फौरन उन्हीं में से चुन के बता देते हैं। मुझे महसूस ये होता है कि वो किताब आपको वरगलाती है, वो जो आपके दिमाग में जमा है वो वरगलाती इसलिए कि वो बनी बनाई इमेजेस आपको दे देते हैं, वो बने बनाए उसके इजहार मिल जाते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये ऐसा कहा हुआ है, ऐसा सुनाऊंगा, पर ऐसा महसूस क्या किया था मैंने, और अगर वैसा महसूस नहीं किया तो वो क्या था। और उसके लिए मुझे, जब आप कहते हैं कि आपकी इमेजरी अलग है या इमेजरी अल्फाज वही हैं जो आम इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो जो है वो सही यही महसूस किया था या नहीं किया था। उसके लिए अक्सर ये होता है कि मुझे अपनी नज़्म मुसलसल तराशनी पड़ती है और उस पर मैं मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया सो लिख दिया। तो मैं, फॉर दोज हु वांट टू नो अबाउट इट कि मैं कैसे लिखता हूँ, तो ये कि मेरी नज़्म जो एक दफ़ा जो लिखी है वो फाइनल है, ये कभी नहीं हुआ। महीनों मांझता हूँ, महीनों बाद उसको दोबारा उठा लेता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू रिमेंबर वो एसोसिएशन के, इज़ इट राइट, हैज़ इट कम, और नहीं होगी तो रद्द कर देता हूँ। इसलिए नज़्म मेरे लिए एक्सीडेंटल नहीं है। जो हम अक्सर ये भी सुनने में आया कि देखिए अरे साहब क्या, उसको जब दोबारा देखा तो हमने तो वो नज़्म कुछ और बन गई, तो आपको तो अफसोस करना चाहिए, क्यों और बन गई साहब, जो आप चाहते थे वो क्यों नहीं हुआ। वो अपने आप को जानने का प्रोसेस है, इसलिए वो ज़रूरी है कि वो वही हो जो आपने महसूस किया। शायरी सिर्फ शायरी के लिए नहीं, जो महसूस किया है वो बात अगर आपने कह ली तो वो आपकी अपनी होगी, तब वो बात नहीं होगी। ऐसा मुझे महसूस होता है। हर शख्स का तजुर्बा अलग होता है। जैसे मैंने कहा, सब सनसेट को अलग अलग तरीके से देखते हैं, हो सकता है आपका तजुर्बा कोई और हो, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है। दूसरे ये कि जब आपने कहा कि फिल्म सॉन्ग जब लिखते हैं तो और शायरी में इसमें फ़र्क नहीं है, फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ दो तीन सतहों पर है। एक तो ये है कि इट्स अ कमीशन्ड वर्क, मतलब ऑन डिमांड, एंड यू आर बीइंग पेड, है ना, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन पैसे मिलेंगे, लेकिन ईमानदारी तो नहीं गई ना, ईमानदारी तो मेरी है। मैं उसी कहानी को, उसी सिचुएशन को उस किरदार के साथ मिल के देखता हूँ। जब आप एक अगर कहानीकार हैं तो, या नॉवल लिख रहे हैं या फिल्म लिखते हैं, तो स्क्रिप्ट में भी कहा जाता है ये इस कैरेक्टर का बिहेवियर, ये दिस इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर में नहीं है, नहीं इस कहानी में ये नहीं होता, ये कैरेक्टर कुछ और कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कैरेक्टर में नहीं है। गाने में भी वही इस्तेमाल होता है कि आप जो गाना लिख रहे हैं क्या उस कैरेक्टर में है या नहीं। तो मैं क्योंकि थोड़ी सी फिल्म बनानी भी सीखी थी, तो इसलिए पता चलता है मुझे कि मैं स्क्रिप्ट का दामन नहीं छोड़ सकता। आई ट्रेवल विद द स्क्रिप्ट, उस कैरेक्टर के साथ।
ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से लिख दूं कि अगर आपका किरदार जो है वो सारी फिल्म में कोई एक पूरा उर्दू या हिंदी का जुमला नहीं बोलता और बीच में अंग्रेजी भी बोलता है और वो गाता, तो उसका गाना गालिब की गज़ल तो नहीं हो सकता। उसका गाना वैसे ही होगा, उसमें अंग्रेजी के लफ्ज़ भी वैसे ही आएंगे जिस तरह से वो डायलॉग बोलता है, तभी वो सही है। वरना हम अलग से गाना एक दो गाना लिख दीजिए, चलिए एक दो गाना डाल दीजिए, तो वो स्क्रिप्ट से अलग लगेगा, लेकिन गाना चल जाए ये अलग बात है, लेकिन गाना सही है कि नहीं वो फिल्म के साथ जाएगा। मैं अगर 3 फिल्में, कई बार 2-2 3-3 फिल्में मेरी रिलीज हुई हैं, तो एक फिल्म के गाने दूसरे से नहीं मिलते, दूसरे के तीसरे से नहीं मिलते। उन तीनों फिल्मों की ज़बान भी अलग है और वो गाने भी अलग है। ये नहीं हो सकता कि एक ही शायर ने लिखा हुआ है, इसके देखिए ये इन गानों पे तो ये तो उनके लिखे हुए हैं, ये तो एक ही जैसे आदमी एक ही जैसे हैं, तो देन आई एम अ फेलियर। इसका मतलब है कि मैंने because of that imagery which comes from that character, they have not seen it before. गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, एक आदमी जो खून करता है, बात पे उठा के गोली मार देता है, वो परेशान रहता है, मुझे बात मत करो। लेकिन ये इस तरह से उस किरदार की तरह कहा किसी ने नहीं था, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है ना। तो वो महसूस हुआ आपको अलग इस वजह से कि मैं हर बार उस किरदार के अंदर से ये इमेजरी लेकर आता हूँ, मैं कभी अपनी नहीं थोपी है, उस किरदार से अलग नहीं होगी। जैसे वो बीड़ी जला ले जिगर से पिया, है ना, ये सर्दी है, ना लिहाफ ना खिलाफ हो, जाकर जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। अब लुक एट द इंटायर सिचुएशन, ये ना बीड़ी बेवजह आया है और ना जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले बेवजह है। अगर आपको ये याद हो वो गाना, या आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, सारा झगड़ा और गाना शुरू होता है जब वो उस पर सिगरेट का धुआं छोड़ता है। तो वहां पे सिगरेट का जिक्र होना जरूरी था, मुझे लग रहा था कि वो कहना चाहिए। और उसमें वो सिगरेट जला ले पिया नहीं ठीक लगता, और वो उस किरदार के साथ भी नहीं जाता था। वो किरदार जो कोई डायलॉग उस पूरी फिल्म में उसने बगैर गालियों के नहीं की, है ना। उस लड़की का कैरेक्टर देखिए, तो उसी में से निकले हुए अल्फाज हैं जो उस लड़की के डायलॉग में है। वहाँ पे अब मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप बीड़ी जलाए ले क्यों लिख लिया। मैं कहा वहाँ पे बहुत कोशिश की मैंने कि वो फिट हो जाए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, नहीं फिट हो सकता। तो वहां बीड़ी जला ले और जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, वो ताना दे रहा है बिकॉज हिज बिलवड इज विद द अदर मैन, है ना। एंड इफ यू नो इट्स अ लव मेकिंग सीन देयर हैपनिंग। और इससे आसान, इतनी सटली ये बात कहना कि जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, कैन यू टेल मी एनीवेयर दैट यू कुड से इट बेटर, है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आप अगर शायर हैं तो गाने लिखेंगे तो उसमें शायरी करेंगे ना, उसे तुकबंदी तो नहीं करेंगे। तो उन गानों में कोशिश ये होती है, जहाँ तक भी किया है, कि शायरी का अंश तो उसमें होगा, वो तुकबंदी नहीं है, वो खामखा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है। और यहाँ आकर ये डिफ्रेंशिएट होता है क्योंकि उन गानों की वो किरदार बोल रहे हैं, वो कहानी बोल रही है, वो सिचुएशन बोल रही है, वो लैंग्वेज जो किरदार बोल रहा है वो बोल रहा है, फिर म्यूज़िक का मीटर जो उन्होंने दिया वो बोल रहा है। लेकिन इट्स नॉट माई स्टेटमेंट ऑफ लाइफ, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन लाइफ। मतलब मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका स्टेटमेंट ये है ऑन लाइफ, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन उस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो वो उसका स्टेटमेंट लगेगा। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज अगेन, कि वो बहाना नहीं लग सकता। आई थिंक दीज आर द डिफरेंसेस कि इन एंड व्हेन आई जिस वक्त मैं नज़्म कहता हूँ तो इट्स माई ओन स्टेटमेंट ऑन लाइफ, कि मैं कैसे महसूस करता हूँ। मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक नज़्म आपके लिए ताकि जी बहला रहे वो, क्योंकि हम
रामलीला में भी होता है ना कि सारा सीन चलता है, उसके बाद बीच में हारमोनियम लेके आता है, तो अर्थात कह के तो हारमोनियम वाला हाजिर है कि एक ख्याल को कागज पर दफनाया तो एक नज्म ने आंखें खोल के देखा। बहुत अच्छे। एक ख्याल को कागज पर दफनाया तो एक नज्म ने आंखें खोल के देखा, ढेरों लफ्जों के नीचे वो दबी हुई थी। सहमी सी एक मध्यम सी आवाज की भाप उड़ी कानों तक, क्यों इतने लफ्जों में मुझको चुनते हो। नज्म की आवाज भाप की तरह मेरे कानों तक पहुंची। सहमी सी एक मध्यम सी आवाज की भाप उड़ी कानों तक, क्यों इतने लफ्जों में मुझको चुनते हो। बाहें कस दी हैं मिसरों की, तशबीहों के पर्दे में हर जुनबिश तय कर देते हो। इतनी ईंटें लगती हैं क्या, इतनी ईंटें लगती हैं क्या एक ख्याल दफनाने में। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी जवाब दे दिए अपने इल्ज़ामात के, अपने जितने मुझ पर इल्ज़ाम लगे थे मैंने जवाब तो दे दिए। अब मेरे वकीलों से पूछे। अमेजिंग गुलजार साहब, बहुत खूबसूरत था। आई जस्ट लाइक टू ऐड व्हाट सुकृता जी वाज सेइंग अबाउट हैविंग आवर ओन पैरामीटर्स टू डिफाइन पोइट्री और टू लुक एट पोइट्री। अब जैसे गुलजार साहब की ही हम यहाँ पे शायरी का हम तस्करा कर रहे हैं। सो हाउ ही इज़ अ प्रोग्रेसिव पोएट इन पॉपुलर कल्चर। आई मीन लुकिंग एट आवर स्टूडेंट्स हियर वी नो दैट हाउ पॉपुलर यू आर, बिकॉज इस जनरेशन के बच्चे भी उतने ही आपके फैंस हैं। सो इट्स अबाउट the parameter of putting his poetry in the framework of progressive poetry with popular culture. और पवन जी के बात पे मैं एक on a lighter vein I'd like to add when he was talking about the corpus of work of गुलजार साहब, जब किताब हो रही थी and I was trying to make the appendix, my editor शांतनु साहब ने कहा कि try and put all the songs that you can find. बिकॉज दिस इज़ माई PhD, तो PhD में शायद सिर्फ 250 गाने और 250 नज़्म ली थे, 500 का डेटा था। तो ब्राइट आइडिया आया हमारे एडिटर को। आई वॉज ऑल्सो वेरी इंथुजियास्टिक, नहीं बहुत सही बात है। आई स्टार्टेड राइटिंग, इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो अपेंडिक्स अगर आप देखेंगे, देर अबाउट 500 सॉन्ग्स, 700 poems, and to analyze that, it was a beautiful experience, which is another story. But, and then you look at the amount of work that he has produced in the last 5 decades or so. So thank you for giving us this body of work. Thanks to you. For the first time मुझे आपकी किताब के बाद ये महसूस हुआ, नहीं मैं तो कुछ अच्छा ही काम कर रहा हूँ, वरना कोई भी वो लिखता है इतना। Thank you.